قلعہ شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری جس کے نام سے ہندوستان کی رعایا اور دوسری ریاستوں کے حکمرانوں پر سخت طاری ہو جاتا تھا، جس کی ہیبت اور جاہ و جلال سے در و دیوار کانپ اٹھتے تھے، آج وہ منو مٹی تلے ابدی نیند سو گیا اور اس کے شاندار ماضی کی تاریخ صرف چند کتابوں تک محدود رہ گئی. اسی کا نام دنیا فانی ہے. موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ شاد و آباد رہیں. میرا نام ساجد حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پوٹھوار پروڈکشن. محترم ناظرین، آج ہم موجود ہیں قلعہ رتاس، اور قلعہ رتاس کے مین گیٹ کے بالکل ہم سامنے کھڑے ہیں، اور یہ قلعہ رتاس کی یہ بلڈنگ انسانی ذہن پر حیرت اور ہیبت کے ملے جلے اثرات مرتب کرتی ہے. ناظرین، یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا. قلعہ رتاس 948 عیسوی میں مکمل ہوا، جو پوٹھوار اور کوستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا. اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گہرے گھنے جنگل موجود ہیں. شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا. دراصل گکھڑ مغلوں کو بر وقت امداد مہیا کرتے تھے اور شیر شاہ سوری کو یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہیں تھی. قلعہ کسی حد تک جب مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی ہے، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے. قلعہ رتاس خطہ پٹھوار کے تاریخی ضلع جہلم تحصیل دینا کے نزدیک جی ٹی روڈ سے تقریباً 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اس قلعہ کو شیر شاہ سوری نے مغل شہنشاہوں سے لڑنے کے لیے تعمیر کروایا. آج ہم 171 ایکڑ پر پھیلے اس عالمی ورثہ کو ڈسکور کریں گے. دس از روہتاس فورٹ جہلم. اسلامی فن تعمیر کا یہ قلعہ خوبصورتی اور بناوٹ کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. اس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے 12 دروازے بنائے گئے، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی. قلعہ رتاس کا سب سے قابل دید اور شاندار حصہ اس کی دیوار ہے، جس کی لمبائی 4 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور چوڑائی تقریباً 5 فٹ ہے. قلعہ رتاس کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں اس شاہکار کی تعمیر ہوئی. حویلی مان سنگھ اور رانی محل بھی قلعہ رتاس کی قابل دید جگہ ہیں. حویلی مان سنگھ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے. یہ محل قلعہ رتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا. رانی محل بھی حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر موجود ہے، جس کی دیدہ زیب عمارت کی باقیات آج بھی موجود ہیں. یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں رہائشی عمارات بہت کم تعمیر ہوئیں. چونکہ یہ قلعہ خاص جنگی مقاصد کے لیے بنوایا گیا تھا، اس لیے مغل بادشاہ بھی یہاں پر خیموں میں ہی قیام کرتے تھے. قلعہ رتاس اپنی بلند و بالا اور پرشکو عمارت، دروازوں اور مضبوط دیوار کے حوالے سے بر صغیر کے اہم ترین قلعوں میں شمار ہوتا ہے. 1997 میں یونیسکو کی جانب سے اس عظیم الشان قلعے کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا.
16वीं सदी में तामीर होने वाला किला अरतास हमारा कौमी असासा और शानदार माजी की एक बेहतरीन मिसाल है। जब तक ये दीवारें कायम रहेंगी, किला अरतास की तारीख जिंदा रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये नज़ारे देख रहे हैं, ये मंज़र देख रहे हैं, ये तहसील दीना के सभी गांव हैं। ये जगह जो है ये नाला गान की तरफ आती है, इसे नाला गान कहते हैं, जिसमें पीरशाह वसन भी है और भी बहुत से गांव हैं। ये सब नदियाँ, बहुत अच्छा यहाँ से नज़ारा हो रहा है। आप देख सकें अगर तो ये नाकाबिले फरामोश नज़ारा है। हम इस वक्त किला अरतास की एक बिल्डिंग पे खड़े हैं जहाँ से ये सब नज़ारा हो रहा है। गोया आप ये कह सकते हैं ज़िला जेलम और तहसील दीना के जितने गांव हैं, यहाँ से तकरीबन 80% गांव जो है उनका नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किला अरतास के एक हिस्से में जिसका नाम है हवेली मान सिंह। जो मेरे आप उकब में देख रहे हैं ये हवेली मान सिंह है। हवेली मान सिंह इस नाम से मंसूब है कि ये मान सिंह नामी जो था सिपा सालार शेरशाह सूरी की फ़ौज का, ये इसे कमांडर इन चीफ का कह लें या इसे वज़ीर दिफा कह लें, ये जंग के लिए आखिरी आर्डर दिया करता था। एक अहम शख्सियत जिसका नाम लिए बगैर किला अरतास की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। इस शख्सियत का नाम खैरुन्नसा था, जो शेर शाह सूरी के वज़ीर खुराक कादर बख्श की बेटी थी, जो शेर शाह सूरी के बाद भी शेर शाह सूरी के दुश्मनों से लड़ती हुई इस जहां फ़ानी से कूच कर गई। लेकिन हैरत की बात है कि उसकी कब्र का इस किला में कहीं नामो निशान नहीं है। मादूम सी तारीख के मुताबिक खैरुन्नसा की वसीयत के मुताबिक उसको शेर शाह सूरी के मकबरे में दफन कर दिया गया और शेर शाह सूरी का मकबरा ससाराम, बिहार, हिंदुस्तान में है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किला अरतास के अंदर ही रानी महल के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर विज़िट करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? दिलशाद। आप कहाँ से आए हैं और ये बताएं कि आपको ये विज़िट करके किला अरतास कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तो विज़िट करके बहुत मज़ा आया जी। तो जेलम के ही हम लोग रहने वाले हैं, तो ये किला इतना बड़ा है कि जितना भी इसको देख सकें कोई ना कोई जगह इसकी रह जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी प्यारी जगह जी, बल्कि हमारे लिए जेलम वालों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है ये। नाज़रीन, किला अरतास के मुतल्लिक़ तारीख़ ये भी बताती है कि इसकी चुनाई जो है वो बड़े तरीके से की गई है। उस वक़्त सीमेंट तो ईजाद नहीं था, तो तारीख़ से ये पता चलता है कि ये 3 चीज़ों का मरकब था। एक चूना, दूसरा सुर्खी नाम का केमिकल, और उसके बाद दाल माश का इस्तेमाल किया गया है चुनाई में, ताकि पत्थर से पत्थर आपस में अच्छी तरह से जुड़ सकें। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हम आपको दिखाएंगे कि इसकी चुनाई की साखत कैसी हुई है। ये देखें, बिल्कुल क्लोज करें, ये देखें इसकी चुनाई जो है ये दाल माश, चूना और सुर्खी से की गई है, और इतनी ये सख्त है, इतनी हार्ड है ये आजकल के सीमेंट को भी पीछे छोड़ रही है। ये देखें, ये दाल माश, चूना और सुर्खी है। ये हमें तारीख से पता चलता है। ये बूटी आगे से ये रुकावट बन रही है। ये देखें, ये भी इन शहनशाहों की तरह ये भी कोई जिद्दल बूटी है। जिस तरह ये शहनशाह एक दूसरे से जंगें लड़ते थे और बाहर नहीं आते थे, ये बूटी भी इसी तरह से है। ये आपने देख लिया। ये देखें, ये दाल माश और ये चूना और सुर्खी का इस्तेमाल हुआ है इसकी चुनाई में।
इस किले में बाकायदा एक फांसी घाट भी मौजूद है। तारीख़ ये बताती है कि यहाँ पर गिरफ़्तार किए जाने वाले मुखालफ लश्कर के फ़ौजियों और अपनी रियाया के नाफरमान लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। एक मादूम सी तारीख़ ये भी मिलती है कि यहाँ पर एक कुआं नुमा गड़ा भी मौजूद था जिसमें बेहद नाफरमान मुजरमों को गड्ढे में फेंक दिया जाता था और भूखे शेर छोड़ दिए जाते थे जो देखते ही देखते इसको चीर फाड़ देते थे। नाज़रीन, इस वक्त किला अरतास में हमारे साथ एक फैमिली आई हुई है जेलम से, उनके साथ बच्चे हैं। आइए हम पूछते हैं कि बच्चों के क्या तसरात हैं किला अरतास के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। बेटा जी, आपका नाम? एंजल। अच्छा, ये बताएं आप कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया। आप कुछ बताना चाहें बेटी जी? हमें बहुत अच्छा लगा, वरना हम लोग इतना खेले, हम लोग ने खाना भी खाया। शाबाश। आप बताएं जी? हम लोगों ने यहाँ के बहुत एंजॉय किया। चलो ठीक है। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं ऐन किला अरतास के वस्त में। ये जो चारों तरफ से आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये किला अरतास का ही हिस्सा हैं। जैसे ये रानी महल है, ये जेल खाना है, ये सब किला अरतास का एक हिस्सा है। शेरशाह सूरी के दुनिया से, ये शेरशाह सूरी का तामीर करता है। जब शेरशाह सूरी दुनिया से कूच फरमा गए तो उसके बाद मुख्तलिफ मुगलिया शहनशाहों ने इस किले को इस्तेमाल किया। उसके बाद सिख हुक्मरानों ने भी इसको इस्तेमाल किया। ये बहुत ही मुश्किल तीन जगह, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बहुत गहराई पे है नीचे। अगर यहाँ से इंसान गिर जाए तो हड्डी पसली एक हो जाए। तो हम आपके लिए इतनी तकलीफ़ें उठाकर, इतनी मुश्किलात से यहाँ पर हम फिल्म बंदी करते हैं। इसलिए आपसे मेरी खुसूसी ये दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल पुठार प्रोडक्शन को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपके इस तावन से ही हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकेंगे। नाज़रीन, एक साहब और हैं हमारे साथ। हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल रानी महल के सामने। वो रानी महल नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ एक साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ आकर उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद भट्टी। अच्छा, आप आए कहाँ से हैं और किला अरतास आकर आपको कैसा लगा? मैं जेहलम का ही रहने वाला हूँ, जेहलम वेस्ट कॉलोनी से। और मैं बच्चों के साथ अपनी ईद सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आए हैं इधर किला अरतास में। तो जैसे कि पहले भी एक भाई ने कहा था कि ये इतना वसी है ये किला अरतास कि हम अगर पूरा दिन भी इसमें स्पेंड करें तो ये हम इसको पूरा घूम नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें जी। और इसके अलावा इधर आके हम अपने जो तारीखी ये जो मनाजर हैं इनको देख के हमें अच्छा लगता है कि हमें पुराने अपने पुरुषों की और बाकी सब की जो है ना वो याद दिलाता रहे। शाबाश।
sir. Where you coming from? Where? नाज़रीन, अभी हम किला रतास में मौजूद हैं और किला रतास की सैर के हवाले से हम इख्तितामी मराहिल पे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये चंद सेकंड जो पहले कुआं दिखाया है, ये भी एक कुआं है और बताया जाता है कि 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। और किला रतास की इंतज़ामों तंजीम के लिए पानी यहाँ से ही ले जाया जाता था और ये 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाती हैं और नीचे की तरफ पानी भी है। और जो पहले कुआं दिखाया गया है, इसका एक सिरा यहाँ से शुरू होता है और दूसरा सिरा वो कुएं के साथ जा मिलता है और यहाँ से ही पानी, यहाँ के बासिर या यहाँ की फ़ौज यहाँ से ही पानी ले जाया करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किला रतास के विज़िट के हवाले से अभी हम आखिरी मरहले पे हैं और हम ये इतना ऊंचाई पे है और नीचे की तरफ उतराइयाँ भी हैं, चढ़ाइयाँ भी हैं। हम 1 घंटा 1.5 घंटे बल्कि 1.5 घंटे से फिल्मिंग कर रहे हैं और इस वक्त हम थक कर चूर हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल पुठवार प्रोडक्शन को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। जी सलाम, वैसे सब अस्सलाम वालेकुम। हम जेलम से तो आए हैं, तो हमें पता चला यहाँ पर शेर शाह सूरी ने ये बनाया था ये क्या ना किला, तो हम वो देखने के लिए आए हैं स्पेशली। लेकिन बहुत अच्छी जगह, हम सब देख के हैरान हो गए हैं कि उस वक्त कैसे ये सारा काम हुआ होगा, देख के बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि तारीख भी ये बताती है कि ये किला बनाते बनाते कई 100 मज़दूरों की हलाकत हो गई। मिस्त्री भी फौत हुए, मज़दूर भी फौत हुए यहाँ पर। और उस वक्त बादशाह का हुक्म हुआ करता था, कोई कोर्ट नहीं थी, कोई अदालत नहीं थी और उस वक्त आर्किटेक्टिंग इंजीनियरिंग ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस वक्त सनती दौर भी नहीं था, ज़राई दौर था। लोग जो है वो बैलों को जूत कर हाल चलाया करते थे। तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इतनी सीधी और इतनी वर्टिकल शेप्स में, इतनी सीधी शेप्स में ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है। और इतने भारी भरकम पत्थर जो है वो उठाकर इतनी सीध में कैसे लगाए जाते थे, अकल इस पे दंग रह जाती है। ये देखें नाज़रीन, ये ऊपर से कुआं जो आपको दिखाया गया था, ये उसकी निचली सतह है, यानी ये उसका बॉटम है। और ये देखें ये नीचे से ऊपर कितनी लंबाई है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उस वक़्त के मिस्त्री साहिबान या जो भी थे, उस वक़्त को इंजीनियरिंग की तालीम नहीं थी
आर्किटेक्टिंग की तालीम नहीं थी तो उस वक़्त ये कैसे मुमकिन हो सका कि इतनी बड़ी बिल्डिंग या इतना गहरा कुआं खोदा गया। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि तारीख़ बताती है कि ये सब किला अरतास की चीज़ें बनाते बनाते बिल्डिंगें बनाते बनाते कई सौ मजदूर हलाक हुए। मेरे गाने में थी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी खैर। आप किला अरतास देखने आए हैं, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। ज़्यादा तो मैं इधर ही देखा तो आगे भी एक दफ़ा आया हूँ मैं, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। क्या इसका नाम क्या है? नाम का तो नहीं पता, बस ये कुआं यहाँ से पानी लेकर जाते थे यहाँ के बासी लोग या शेर शाह सूरी की फ़ौज। ये शेर शाह सूरी के बाद भी मुगलिया शहंशाहों ने यहाँ पर हुकूमत की, सिखों ने यहाँ पर हुकूमत की। तो ठीक है नाज़रीन, अब ये हमारा इख्तितामी मरहला था, आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के हम थक चुके हैं। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए इतना ज़रूर कर दें कि हमारे इस चैनल पुठार प्रोडक्शन को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।